This video, we will be having discussion over the no confidence motion. Right now, there is a point which we need to understand why I am coming up with the no confidence motion. Because I hope you guys have looked after the news or the you guys are having idea about the incidents which are going on into the country nowadays. Incident like the Manipur ethnic violence. Basically, I want to communicate or I want to address the issue which is going on in the country. So the opposition party leaders are constantly looking after a statement from the Prime Minister of the India, Mr. Narendra Modi ji. And because of which only the Lok Sabha Speaker Om Birla accepted a no confidence motion which was moved by opposition party leader on 26th of July. The motion was brought amidst the opposition ongoing protest demanding a statement on a situation in Manipur from the Prime Minister Narendra Modi. So in this video, we will be trying to understand what exactly the motion is and what exactly the no confidence motion is. And in the last of this video, I will be giving you a question and you can respond me in context of the question by just commenting in the comment section. Let's have a discussion over the motion. A motion is a formal proposal. Basically, be very clear. Motion is what? Motion is a formal proposal made by a member in a house of parliament to initiate a debate or a decision on a matter. Please be very clear why a motion is brought up in the so-called the house. Motion is brought up or motion is bring up or motion comes up with the objective of having a debate or a decision on a matter. There are several motions in the parliamentary proceeding. Motion like adjournment motion, closer motion, motion with a vote, short duration, so-called discussions, and the no confidence motion. So we will be having discussion over the no confidence motion and we'll be trying to understand what exactly the no confidence motion is. In a parliamentary democracy, government can be in power only if it commands a majority in the directly elected house. That means house of the people we are talking about. आपसे कहा गया है कि भाई भारत में कोई भी पार्टी जो है वो सरकार में तब तक ही रह सकती है, सरकार का हिस्सा तभी तक हो सकती है या सरकार का फॉर्मेशन तभी कर सकती है जब उसके पास मेजॉरिटी है। जब आप भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 75 के क्लॉज नंबर 3 को देखते हैं तो बहुत क्लियरली कहा गया है। 75 clause 3 of our constitution embodies this rule by specifying that council of ministers are collectively responsible to the house of the people कि हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वह लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर टेस्टिंग दिस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को चेक करने के लिए the rules of Lok Sabha provide a particular mechanism, a motion of no confidence. So this is the point which every single student needs to understand. कि नो कॉन्फिडेंस क्या है? बोले नो कॉन्फिडेंस एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके माध्यम से वो जो आर्टिकल 75 के क्लॉज 3 में कहा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, तो उस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को चेक करने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन को ब्रिंग आउट किया जाता है। एनी लोकसभा मेंबर who can garner the support of 50 colleagues can at any time introduce a motion of no confidence against the council of minister। तो आपसे कहा गया कि लोकसभा का कोई भी सदस्य जिसके पास कम से कम 50 दूसरे और अन्य सदस्यों का सपोर्ट है वह किसी भी समय में क्या कर सकता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ सकता है। और जो सरकार है, जो पार्टी है, जो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा को, उसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को चेक कर सकता है। देयर आफ्टर अ डिस्कशन ऑन द मोशन टेक्स प्लेस, और जैसे ही मोशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जैसे हमने देखा कि 26 जुलाई में ओम बिरला जी ने मोशन को एक्सेप्ट कर लिया, अगले कुछ दिनों में उस पर डिस्कशन होगा। तो अब हम यह समझेंगे कि कितने दिनों में डिस्कशन होगा। Thereafter, a discussion on the motion takes place. MPs who support the motion highlights the government shortcomings and the treasury benches respond to the issue they raise। तो आपसे कहा गया कि भाई जो मेंबर पार्लियामेंट के नो कॉन्फिडेंस मोशन के फेवर में है वह सरकार की जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, सरकार की जो कमजोरियां हैं उनको गिनाएंगे, और जो रिस्पॉन्सिबल मेंबर है, मिनिस्टर है, सदस्य है, वह क्या करेगा? वह उसको रिस्पॉन्ड करेगा। और अंत में जाकर एक वोटिंग होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 100 में बहुत क्लियरली कहा गया है एवरी डिसीजन इन द पार्लियामेंट इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द वोटिंग। Finally, a vote will take place in the case of motion carries and the government is bound to vacate the office। अगर
वोटिंग में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है सिंपल मेजॉरिटी से, तो फिर हमारी मिनिस्ट्री जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, इनको रिजाइन करना होगा। यह पॉइंट सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में बेहद स्पष्ट होना चाहिए। कुछ सामान्य से शब्दों में अगर हम समझने का प्रयास करें, इन अदर वर्ड्स, बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन, लोकसभा कैन रिमूव द मिनिस्ट्री फ्रॉम द ऑफिस। The procedure for moving a no confidence motion is outlined in Rule 198 of the Rules of the Procedure and the Conduct of the Lok Sabha. अगर कोई आपसे पूछता है, अगर आपके एग्जामिनेशन में एक पॉसिबल क्वेश्चन बनता है कि बताइए ये जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग है, रूल्स रेगुलेशंस हैं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ लोकसभा है, तो इसके किस रूल में नो कॉन्फिडेंस मोशन का इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है? इसका प्रोसीजर रूल नंबर 198 में लिखा है। A written notice of this motion has to be submitted by member before 10 AM. ये पॉइंट बेहद इंटरेस्टिंग है, कई किताबों में नजर नहीं आएगा आपको। आपको यह समझना होगा कि अगर कोई भी सदस्य नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आना चाहता है तो उसे 50 अन्य सदस्यों के सपोर्ट के साथ एक रिटन नोटिस जो है स्पीकर को देना होगा 10 बजे से पहले। The motion must be accepted by minimum of 50 members and the speaker will then announce the date of the discussion of the motion. The date must be within 10 days of the day the motion is accepted. Otherwise the motion fails. तो एक और पॉइंट आपको यहां से समझना होगा कि 10 दिन के अंदर क्या किया जाए। बोले सर डिबेट होंगी उस पर, अगर 10 दिन के अंदर डिबेट नहीं होती है तो इसका मतलब यह है कि मोशन जो है वह फेल हो गया। इफ द गवर्नमेंट इज अनेबल टू डेमोन्स्ट्रेट इट्स मेजोरिटी इन द हाउस, और ऐसे में अगर मोशन सरकार आपके लोकसभा में पास हो जाता है, मतलब सरकार अपनी मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाती है, तो निश्चित तौर पे सरकार जो है वर्तमान उसे रेजिग्नेशन देना होगा। Opposition parties also use it as a tool to put pressure on the government to hold debate on issue of critical national importance. अभी जो 26 जुलाई में मोशन आया वो इस पर्सपेक्टिव से आया। यहाँ सरकार की मेजॉरिटी को चेक करने के नजरिए से मोशन को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। यहाँ जो मणिपुर में एथनिक वायलेंस चल रहा है, जिस पर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कोई टिप्पणी नजर नहीं आई, हमें बहुत सीरियस टिप्पणी संसद में नजर नहीं आई, तो उस पर चर्चा करने के लिए सभी विपक्षी पार्टियों ने इस मोशन को इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया, इस मोशन को इंट्रोड्यूस करने का डिसीजन किया। तो इस पर्सपेक्टिव से नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वह इनिशिएट किया गया। A no confidence motion becomes a vehicle in and of itself establishing a unity into the opposition. That's what I had stated. कुछ बेहद इंटरेस्टिंग से फैक्ट जो आप समझ सकते हैं। So far, how many no confidence motions have been moved in the past? 27, a total of 27. 27 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन हमारी संसद में, लोकसभा में रखा जा सके। आपको यह याद रखना होगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन हमेशा सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, इसका इंट्रोडक्शन राज्यसभा में नहीं हो सकता। सबसे पहली बार अगर आप देखते हैं तो सबसे पहली बार नो कॉन्फिडेंस मोशन 1963 में उस समय के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अगेंस्ट आचार्य जेबी कृपलानी जी लेकर आए थे। लेकिन यह मोशन 21 घंटे ओवर 4 डेज, मतलब 4 दिन में 21 घंटे चर्चा हुई और खत्म हो गया। और रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो इसके फेवर में सिर्फ 62 वोट्स थे और इसके अपोजिशन में 347 वोट्स थे, मतलब मोशन बुरी तरह फेल हुआ। अगर आपसे पूछा जाता है कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा बार नो कॉन्फिडेंस मोशन को फेस किया है, तो आपके दिमाग में स्पष्ट आंसर होना चाहिए इंदिरा गांधी से। इंदिरा गांधी हैज फेस्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ no confidence motion, that is 15 times. The no confidence motion has been introduced against him. Jyoti Basu, the CPI-M leader, has proposed no confidence motion at least 4 times. Morarji Desai government was the very first to succumb the no confidence motion in the Lok Sabha. No confidence motion was moved twice against his government. लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन का रिजल्ट होता उसके पहले मोरारजी देसाई ने रेजिग्नेशन दे दिया। The no confidence motion was introduced against Chaudhry Charan Singh government in 1979. After handing over his resignation to the president, Chaudhry Charan Singh recommended the dissolution of Lok Sabha. ऐसे ही कुछ और बेहद इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। आपको यह याद रखना होगा अंत में इस वीडियो के कि अभी तक 27 बार में जो अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस किया गया है, 3 ऐसे हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, आई के गुजराल, एच डी देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने सरकार से जिनकी सरकार नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से सरकार से बाहर हुई। आई के गुजराल, एच डी देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी have been voted out from his office by this way.
So that's it. I hope these videos are constantly helping you out to enhance your understanding of the so-called this that is the subject of as well as of Indian polity. And believe me, these short videos will definitely help you out in upcoming examination. तो आपके लिए क्वेश्चन है अंत में, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हमारी भारत सरकार को क्या इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को बहुत सीरियस लेना चाहिए? कोई चिंता की विषय है? क्या भारत सरकार में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सरकार से बाहर किया जा सकता है इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ? क्या हमारी सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा? तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने अनअकैडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है, अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा रेफरल कोड KD496 यूज़ करिए। आपको अनअकैडमी की ओर से वह डिस्काउंट दिया जाएगा जो प्लेटफ़ॉर्म पर अवेलेबल होगा। यह एक बैच है हमारे पास 70th बीपीएससी के लिए। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह मेरे बारे में है। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन।